your होता है, faith is in vain. तो आपका विश्वास व्यर्थ है। That means the cross doesn't complete it. इसका मतलब क्रूस का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। See, I'm showing you scripture. आपको वचन दिखा रहा हूँ, If Christ is not raised, यीशु मसीह जी ने उठा, then your faith is in vain. तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। Because there is a whole denomination out here. यहाँ पे सारी संस्था इस बात को लिखी है। You say Christ did not die on me. Christ did not die on ये me. कहते यीशु मसीह मरा ही नहीं। But what does the scripture teach? ये वचन हमें क्या सिखा रहा है? If Christ was not raised, यीशु मसीह नहीं, your faith is in vain. तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है You are yet in your sins. और आप आज भी पाप में फंसे हुए हो। But what has been preached to us? तो हमें क्या प्रचार किया जाता है? Our preaching, which has done for years, is that your sins are forgiven. हमारा प्रचार ये कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। But what does the scripture teach? तो वचन हमें क्या कह रहा है? Again I am saying, if Christ be not raised, अगर यीशु मसीह जी नहीं उठा, that raising जो जी उठना है, includes the resurrection and the ascension, जो पुनरुत्थान है और स्वर्गारोहण जो है, which you will see now. जो हम देखेंगे, Your faith is in vain. तो आपका विश्वास व्यर्थ हो जाता है। Your faith is in vain. तो विश्वास व्यर्थ होता है You are yet in your sins. और आज भी फिर आप पाप में पड़े हुए हो। How much we concentrate on Good Friday? कितना हमें गुड फ्राइडे पर हम ध्यान रखते हैं, How much we concentrate on Easter Sunday? ईस्टर संडे के ऊपर कितना हम ध्यान रखते हैं। Where is the other part of Jesus? लेकिन यीशु मसीह की बाकी बातें कहाँ हैं? What is he doing now? अब वो क्या कार्य कर रहा है? See, one young boy देखिए एक जवान लड़का told me जिसे मुझे कहा, on the phone, he is not here today. वो आज यहाँ पर नहीं, उसने फोन पर मुझसे ये बातें की, Uncle Derek, अंकल डैड, we celebrate, हम we celebrate हम उत्सव मनाते हैं, the ascension of an earthly woman. We celebrate हम उत्सव मनाते हैं the ascension जो स्वर्गारोहण जो है of an earthly woman. जो पृथ्वी की जो महिला के बारे में, But we do not celebrate the ascension of our Lord. लेकिन हम अपने यीशु मसीह की जो स्वर्गारोहण उसके बारे में You कोई only उत्सव tell नहीं me मना रहे। whether it is right or wrong. आप ही सोचिए ये सही है गलत है। Let the Holy Spirit convict you. नहीं, पवित्र आत्मा समझाए इस बारे में। See, don't simply support. खाली इसी तरह किसी बात को सम्मति ना दे। God is grieved. God is grieved. प्रभु को दुख होता है इस बारे में, परमेश्वर को दुख होता है। There is no talk about the ascension. हम स्वर्गारोहण के बारे में बात ही नहीं कर रहे, But we celebrate the ascension of an earthly woman. लेकिन हम स्वर्गीय जो महिला उसके A day is given to that. उसके बारे में एक दिन दिया हुआ है। You understand what is happening? आप देख रहे हो कि क्या घटनाएं घट रही We है, will see. हम देखेंगे। The ascension of our Lord हमारे यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जो है वो क्या होता is जाना है, equally important. उतना ही महत्वपूर्ण है। Why? क्यों? You are at the cross. At the cross, क्रूस पर you are saved from the guilt of your sins, आप अपने पाप के ग्लान से मुक्त हुए हो, but not from its power. और उसके सामर्थ्य से मुक्त नहीं हुए हो। You cannot, आप नहीं हो सकते हो unless the Lord went to heaven. जब तक कि यीशु में स्वर्ग पर न जाए। That's why our people are lying in their sins इसीलिए आज हमारे लोग पाप में डूबे हुए हैं and deceived, और फंसाए जाते हैं totally deceived. और फंसाए जाते हैं। Again, I am repeating. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, You are saved at the cross आप क्रूस पर आप बचाए गए from the guilt of your sins. Means suppose पाप के ग्लानि से आप मुक्त हुए हो। what I mean to say is that मेरा कहने का मतलब ये है, suppose I had sinned before. आप सोचो कि जैसे मैंने पहले पाप किया है, Sin I had committed before, serious or not serious, चाहे वो गंभीर हो या गंभीर ना हो, and I came to Jesus और Christ. मैं यीशु मसीह के पास आ गया, Okay, now at the cross और अब क्रूस पर I have no guilt for that. उसके लिए मुझे कोई ग्लानि नहीं है, There is no condemnation for me now. उसके लिए मुझे अभी कोई दोष नहीं लगता है। I can safely say जो हो गया अभी मैं यीशु में जो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जो घटनाएं घटी अब उसके बारे में कोई ग्लानि नहीं है। finish. I have no guilt. अब मेरे कोई ग्लानि नहीं है। Anybody reminds me of that sin, और कोई मुझे इस बारे में याद रहता है, I will rebuke him. तो मैं उसको धुतकारूंगा, I will rebuke that person. मैं उससे धुतकारूंगा उसे। Why? Because I am saved क्योंकि मैं अभी बचाया गया हूँ, from the guilt of those sins. क्योंकि उसमें पाप के ग्लानि से मुझे बचाया गया है। Didn't you have the guilt before?
क्यों आपको ऊपर एक ग्लानि नहीं थी जो आपने पाप किया था? There is no guilt now. अभी कोई ग्लानि नहीं है। But are you saved from the power? लेकिन क्या उस सामर्थ से, पाप के सामर्थ से आप मुक्त हुए हो? You will go on sinning again. क्योंकि आप वापस जाकर फिर वही पाप करोगे। Because you have no power. क्योंकि आपके सामर्थ नहीं है। You have no power to say no. कि आपके पास सामर्थ है कि आप उस पाप के लिए ना कर सके। Not possible. ये संभव नहीं है। Unless the Lord was raised. जब तक कि यीशु मसीह जी And you see why. मैं बताऊंगा क्यों। We will see why. देखिए आप क्यों। The ascension ministry जो स्वर्गारोहण की जो सेवकाई है, is very important to salvation. ये उद्धार के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। Because you have to see, if you have to go closer to this Lord, क्योंकि जब आप मसीह के पास और करीब जाते you हो, have to be saved from the power of sin. तो आपको उस पाप के सामर्थ से छुटकारा आवश्यक है। Otherwise you cannot go closer to Him. और वरना आप प्रभु के पास करीब नहीं जा सकते हो। Okay. Now in the Bible, इस शास्त्र में, प्रभु के शास्त्र में, there are about 250 names given to Jesus. यहाँ पे 250 नाम दिए हुए यीशु मसीह To को। Jesus. यीशु मसीह को नाम दिए हुए हैं। All these names ये सारे नाम जो है and the attributes और उसके जो गुण है, are connected to salvation. ये सारे उद्धार से जुड़ते हैं। Not only Savior, सिर्फ उद्धार ही नहीं, not only Lord, सिर्फ प्रभु नहीं, but there are many. तो ऐसे कई नाम है। Some He got on earth, कुछ नाम उसे इस पृथ्वी पर दिए गए some He got in heaven. और कुछ नाम उसे स्वर्ग में दिए गए। Can you tell me which name He got in heaven? आप बताओगे Any उसे one स्वर्ग में name, कौन- anybody एक कोई can नाम tell बताइए me? जो उसे स्वर्ग में दिया गया। Anybody? No, no. For our salvation, हमारे उद्धार के लिए ऐसा कौन सा नाम है स्वर्ग में यीशु मसीह को दिया गया? for our कोई एक salvation. नाम। Ever heard of Jesus being called our advocate? आपने कभी ये सुना कि यीशु मसीह हमारा वकील है? Where did He get His name? ये कहाँ नाम है? On earth or where? या एक पृथ्वी पर दिया गया है या स्वर्ग में दिया गया है? He's our advocate वो हमारा वकील है। because He knows. See, you have to know. See, the Bible is about God, man, and Satan. So you have to know yourself. देखिए No? शास्त्र जो बातें कर रहे हो परमेश्वर, मनुष्य और शैतान के बारे You में, don't need an advocate. तो अपने You वकील need or को- don't need. आपको वकील की आवश्यकता है या नहीं है? गिरे हुए हैं हम. गिरे हुए हैं हम. We are gone. Finished. हम गिर चुके We हैं, are finished. We are finished. समाप्त हो चुके हैं। Finished. खत्म. We are finished. I'm telling you the truth. मैं आपको सच्चाई का बयान कर रहा हूँ, खत्म हो चुके हैं। If you understand it is well and good. ये अच्छी बात है कि अगर आप इसे समझ जाओ इस बात को। Everybody is finished. हर एक एकदम अंत में समाप्त If हो you चुके go home and think properly, हैं। आप घर पे जाओ, whether इस you're बात में finished or not finished, कि हम समाप्त हैं, You हम think, हैं you या नहीं think. हैं। आप सोचिए इस बारे में। you only go home आप क्या and करते think हैं? properly. Sit down and think. आप बैठे हैं और इस बारे में See गहराई the से jealousy सोचिए। filled in us. See the envy filled in us. See the problems that we are. See, we cannot talk good about anybody. We. कई बातें जो हमारे मनों में होती है, जलन, ईर्ष्या, किसी के बारे में बुराई, इससे हम छुटकारा ही नहीं पा चुके। वो बार बार हमारे मन में आती रहती है। 3 trillion cells are full of sin. सारे पाप से हम भरे हुए सारे विचारों See, से। I am not going to go further. You only see for yourself. आप खुद अपने आप को जांचें और देखिए। मैं ज्यादा इस बारे में बातें नहीं करता। One instigation and you will sin. देखिए एक ऐसी घटना अगर आप पाप में गिरोगे, One thing from your wife and you will talk about somebody else. देखिए एक बात ऐसी घटना घटी कर आप कुछ गलत बातें You करोगे, will talk. आप बातें करोगे। I'm telling you the truth. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, Truth. Be reminded of the Lord. लेकिन हमें इस की आवश्यकता We है। will see all these things. ये हम सब बातों को What He देखेंगे। does for us. उसने हमारे क्या कार्य किया है? Okay. Now, first thing पहली बात ये that what He does in heaven. First thing He does in heaven. We will see what He does. देखिए स्वर्ग से पहली बार हमारे लिए क्या किया, आइए हम देखेंगे। See, if I want you to trust me or you trust yourself. If you think you are still not a sinner, God bless you. अगर आप विश्वास करें ना करें, You are not to study this book. अगर आप ये नहीं समझ रहे आप पापी है तो If you still think you are a good person, अगर आप ये सोचे आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो, please don't study this book. तो फिर आप शास्त्र को ना बाइबल को ना Because it shouts and tells you you're bad. क्योंकि ये शास्त्र जो ये कहते हैं कि आप बुरे हो और चिल्ला करके आप बुरे हो। Not silently. ये शांति से खामोशी से बातें यही कर रही है। It shouts and tells you. ये चिल्ला करके कहती है कि आप बुरे हो, आप बुरे हो। See, you have to first get over this. पहले And I'll tell you how you get over इससे this. बाहर निकलना आना है। Okay, आपको बताओ किससे निकलना है। Okay, now let's go. The first thing you must have heard about
There are two baptizers in the Bible. देखिए आपने पढ़ा होगा कि दो तरह के बपतिस्मा There are two baptizers who give baptism. जिन्होंने बपतिस्मा किया है। One is John the Baptist. आप तो जानते हो जॉन द बपतिस्मा Jesus. और दूसरा यीशु मसीह। Now if you see, ऐसे आप देखेंगे Jesus never baptized anybody on earth. यीशु मसीह ने पृथ्वी पर किसी का भी बपतिस्मा नहीं किया। Baptizes everybody from heaven. वो स्वर्ग से सबको बपतिस्मा दिया। Now we will see. अब हम देखेंगे। Okay. John the Baptist यूहन्ना द बपतिस्मा could शायद get them clean. उनको शुद्ध करता था। How? By asking them to repent. वो कैसे करता था? वो उनको कहता था कि आप पश्चाताप करें। Anybody who has to accept Jesus, he has to repent. That's what he started preaching, na? उससे पश्चाताप क्या कहा? जिससे भी उद्धार थे उसे यीशु मसीह का स्वीकार करना है। But could he keep them clean? लेकिन क्या उनको शुद्ध रख पाया वो? Could he keep them clean? तो क्या वो उनको शुद्ध रख पाया? Not possible. यह संभव था। Not possible. यह संभव नहीं था। See, to keep somebody clean, किसी को शुद्ध रखना he has to be plunged and baptized in the Holy Spirit. उसको पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना जरूरी था। This पवित्र is होना only जरूरी given था। by Jesus. ये सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही After he संभव है। went up, जब वो स्वर्ग में गया, after he went up, जब वो स्वर्ग में गया उसके बाद ही संभव we हुआ। will see this. हम देखेंगे इस बात को। Go to Mark 1:7. आए मरकुस का अध्याय पहला अध्याय वचन 7 हम देखेंगे। He had already spoken about this. उसने पहले ही इस बारे में बातें की थी। Mark 1:7. आए मरकुस का अध्याय पहला अध्याय वचन 7 हम पढ़ते हैं। और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। Who John the Baptist, correct? He's saying somebody else is coming. वो बता रहा है, ये यूहन्ना बपतिस्मा है जो कह रहा है, वो बता रहा है कि कोई मेरे बाद कोई आने वाला है। Okay. Go to Acts 11:16. प्रेरित अध्याय 11 वचन 16। प्रेरितों का अध्याय 11 वचन 16 आइए हम पढ़ते। तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया और तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। Glory to my God. परमेश्वर की महिमा हो। See, our children now are starting to get it. अब हमारे बच्चे जानने लगे हैं। We can know by the talks and the messages that they sent and what all which we are watching that our children are starting to get this thing. अब हमारे बच्चे समझ रहे हैं कि हम जो टीवी देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, Yeah. मतलब जो मीडिया जो आपस में बातचीत उसके द्वारा। See, Jesus healed the sick, यीशु मसीह ने बीमार को चंगाई दी, cast out demons, शैतानों को निकाला, raised the dead, मुर्दों को जिलाया, still the storm. आंधी को ठहराया। All because क्यों? कैसे? he had received the Holy Spirit in full measure. उसको पवित्र पूरी रीति से मिल गई थी। Go to John 3:34. आए यूहन्ना का 3 अध्याय 3 वचन 34 में देखते हैं। आइए यूहन्ना अध्याय 3 वचन 34 हम पढ़ते हैं। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्यों वह आत्मा नाप कर नहीं देता। Glory to God. See, without limit, he had the Holy Spirit. ठीक है, पूरा Without limit, the Bible says. Correct or no? Without limit. बिना परिमाण के मुझे मिला है। Okay. पूरी रीति से। That was on Jesus. यीशु मसीह को मिला है। Okay, that was. Nobody else was soaked in the Spirit. कोई भी कोई तो उसमें पूरी से नहीं भरा। You think when Jesus spoke these words at the temple, from it will come out living waters of this, that, or all that he spoke? Nobody understood. देखिए जब यीशु मसीह ने मंदिर में जब बातें कही थी कि उसके भीतर से आप उसकी धाराएं बहेगी, Nobody understood. धाराएं बहेगी, We'll कोई see बात that. समझा नहीं। Okay, God sent this Holy Spirit पिता परमेश्वर ने उसकी पवित्र आत्मा भेजा, from heaven स्वर्ग से भेजा on him. उसके ऊपर। Where you know at his baptism. बपतिस्मे के दिन At his heavens opened, all that you read. Yeah, Okay, at his baptism. Okay, and the Spirit rested on him. देखिए Okay, पवित्र आत्मा finished. यीशु मसीह ठहर गई। That was it. Nobody had the Holy Spirit now. Okay, now let's go forward. आगे बढ़ते हैं।
Okay, you know, no, that is Luke 3:21-22. You read it. देखिए, At his baptism, you will see the Holy Spirit देखिए, descending on him. बपतिस्मा में लूका के अध्याय में लिखा है, तीसरे अध्याय में लिखा है। Now, he had to go back to heaven अब उसे फिर वापस स्वर्ग में जाना था, to claim this Spirit वो पवित्र आत्मा को घोषित करने के for लिए, others. बाकी लोगों के We लिए। will see this. Go to Luke 24. लूका का अध्याय, Luke 24. लूका अध्याय 24, 49. वचन 49 देखेंगे, 50 देखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 24 वचन 49 50। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। See what he is saying. देखिए वो क्या कह रहा है। Have to go up first. पहले मुझे ऊपर जाना होगा, Claim the Spirit from my Father. मेरे पिता से मुझे पवित्र आत्मा For all of you now. आपके लिए मांगनी होगी। If I am here, it is not possible. यहाँ पे ये संभव नहीं पृथ्वी पर। Are you getting it? आप इस बात को समझ रहे This हैं? is the first thing that he did when he went up. जब वो पहला कार्य से कौन सा किया जब स्वर्ग में गया, जो ये है। Go to John 7:39. आइए योहन्ना अध्याय 7 वचन 39। Unless you are baptized in the Holy Spirit, जब तक पवित्र आत्मा से आपका बपतिस्मा न होगा, there is no desire for this. तब तक आपको वचन पढ़ने की, शास्त्र पढ़ने की कोई इच्छा न रहेगी। There is no desire. 7:39. आइए अध्याय 7 योहन्ना का अध्याय 7 वचन 39। उसे यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। See, I am showing you scripture. मैं आपको वचनों में दिखा रहा हूँ इस बात। Just see the scripture. देखिए मुझे क्या कह रहा है। John 7:39. See what it says. But this he spoke, ye of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Spirit was not given, not yet given, देखिए क्योंकि आत्मा पवित्र अब तक न दिया गया था। because क्यों? Jesus was not yet glorified. क्योंकि यीशु मसीह को अभी तक महिमा में नहीं उठाया गया था। He is not sat at the right hand of the Father. He was not given a name above every name. उसे वो पूरा ऊंचा He नाम was नहीं- not crowned. He was not crowned in heaven. स्वर्ग में सिंहासन पे इसको नहीं बैठा था, पिता के दाहिने हाथ नहीं बैठा था, That had not happened on earth. जो पृथ्वी पर नहीं हुआ था। So you see the scripture is very important. John 7:39. देखो वो अध्याय 7 विचार बड़ा महत्वपूर्ण है। This is the last thing ये आखिरी बातें हैं he spoke on earth जो उसने पृथ्वी पर बातें की, before he left. वो यहाँ से वो जाने से पहले। Go to Acts 1. आइए प्रेरितों का अध्याय, पहला अध्याय हम देखते हैं। Acts 1. Five to eight. Aye. Take me, right? Acts 1. Okay, five पढ़ो ना। आइए प्रेरितों का अध्याय 1 वचन 5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। See, I am showing you scripture. ये वचन दिखा रहा हूँ आपको। Without it is not possible for to be saved from the power of sin. देखिए पाप के सामर्थ्य से बचाने के इसके अलावा कोई Not और मार्ग possible. नहीं, संभव नहीं है, Not at all possible. किसी रीति से संभव नहीं है। See, I am again reading. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days hence. You shall be baptized by whom? By Jesus Christ. कि यीशु मसीह के द्वारा आपको बपतिस्मा मिलेगा और वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा See, you मिलेगा। sing this song, na? Last Sunday we sang this song, na? पर्वत के ऊपर उठाओ आप आके पर I cannot remember now. वहाँ ये मेरी आंखें ऊपर है और वहाँ से सहायता पाऊंगा. Some song is there, na? Which we sang last year. वहाँ से सहायता पाऊंगा. What सहायता पाऊंगा? I am 100% sure you are connecting this to material things. देखिए जो हमने गीत गाया पिछले इतवार को, जो सहायता के बारे में जो गीत गाया था, तो हमारे अवश्य कि हमारा ध्यान और सांसारिक धन संपत्ति की ओर होगा, ना कि परमेश्वर की बातों पर। 101% I know. सब मुझे मैं बात एक कहता हूँ, All the people. वहाँ इससे सहायता पाऊंगा. जब हम गीत गाते हैं हमें वहाँ से सहायता मिलेगी, इसका मतलब हम सांसारिक रीति पर ध्यान दे रहे हैं। Increment. हमारी बढ़ोतरी, That is not the truth. ये
सच्चाई नहीं है। See, what you get from there, or what you have to ask from there, is first the Holy Spirit. देखिए क्या आपको उससे मांगना है, क्या प्रथम बात है जो आप You have to be चाहिए, baptized वह in the पवित्र Holy आत्मा। Spirit. आपके पवित्र आत्मा से बपतिस्मा जरूरी है। And then all other things will be added unto you. फिर बाकी सारी बातें आपको जोड़ दिएगा, आपके जीवन में जोड़ दी जाएंगी। See, now there are two terms. One is you're baptized in the Holy Spirit, देखिए एक बात है जो आपको बपतिस्मा होगा, and the next term that goes further जो आगे बात ये है, is filled with the Spirit. तो पवित्र आत्मा में भर जाओगे। But unless you're baptized, how can you be filled here? लेकिन अगर पवित्र आत्मा ही नहीं पाया तो पवित्र आत्मा में भर कैसे जाओगे? How you can be filled with the Holy Spirit if you're not baptized in जब अगर the बपतिस्मा ही पवित्र आत्मा से नहीं हुआ तो भर कैसे जाओगे? So when you sing that song, if that सांसारिक is in your mind, अगर वो गीत जब हम गाते हो हमारे सांसारिक बातें हमारे दिमाग में है, then who's grieved? तो किसको दुख होगा? Glory to शोकित होगा। God. There's no chance of going forward. तो फिर आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं हमारे That पास। is why I'm teaching these youngsters that I can change and make it correct for yourself. तो मैं यही जवानों को सिखाता हूँ, अपने आप को सही रीति से सोचो, विचार करो। The old is, I think, beyond my capability to teach now. अब पुराने को ये असंभव के मैं और कुछ सिखाऊं आगे, Very difficult. ये बड़ा But कठिन है। the young have a chance now. लेकिन जवानों को ये मौका They है। have a chance when they sing this song. Oh Lord, I require the Holy Spirit, Lord. Lord, when are you going to pour the Holy Spirit on me, Lord? When I'm going to be baptized in the Holy Spirit, my Lord. जब आराधना करते हैं, गीत गाते तब उन्होंने ये करें, पवित्र से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है पूरी रूप से। All other things will be added unto. फिर बाकी बातें सब आपके जीवन में जोड़ दी जाएगी। Yeah. This is first in the getting into the kingdom of God. यही तो बात पूरी राज्य में अपना प्रवेश करने की। Okay, let's go further. आइए आगे बढ़ते हैं। You see that you have to be baptized in the Holy Spirit. ये Okay. आपको आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओ। Okay. All the events at Pentecost जो पेंटिकोस्ट के इसमें जो भी कार्य जो होते हैं, इवेंट्स होते हैं, that Jesus was in heaven. Yes or no? उनके लिए यीशु स्वर्ग में है, Or he just went into the clouds. जो इस बादल पे उठा लिया गया। See, all the events at Pentecost, जो पेंटिकोस्ट के दिन में जो when the Holy Spirit came on Pentecost on all of them, is the right proof. Is the right proof ये सही सबूत है that Jesus is in heaven. कि जो यीशु मसीह स्वर्ग में है, जो पवित्र आत्मा उन्हें पेंटिकोस्ट के दिन में उन्होंने पाया, Because they saw him only going into the clouds. Huh? कि उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह बादल पे Yes or जाते no? देखा है। This is proof. ये सबूत है। And today also he is pouring it out on people. वो आज भी अपने लोगों पर पवित्र आत्मा उंडेल रहा है, Today also. आज भी। Okay, now let's go forward. आइए आगे बढ़ते हैं। Go to go to Acts 8. प्रेरित अध्याय 8वां अध्याय, Eight 15. प्रेरित अध्याय 8 वचन 15 आज हम पढ़ते हैं। प्रेरित अध्याय 8 वचन 15, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। See this. You only see. आप ही खुद देखिए इस बात को। What they prayed for young people. उन्हें जवानों को क्या प्रार्थना की? That they receive the Holy Spirit. ताकि वो पवित्र आत्मा पाए। That has to be received first. ये आवश्यक है पहले को प्राप्त करना। Okay, let's go for one minute. 16 भी पढ़ो बोलो। 16 वचन पे आगे पढ़ते हैं, उसके आगे कि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। 17 भी पढ़ो। तब उन्होंने 17 वचन पढ़ते हैं, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। So when we put our hand on somebody or we hold somebody, what we have to pray? देखिए जब हम किसी पर हाथ रखते हैं या उसके लिए प्रार्थना, तो हमें क्या प्रार्थना करनी That he चाहिए? receive the Holy Spirit. ताकि वो पवित्र आत्मा पाए। Because we know कि हम जानते हैं that if he is going to receive the Holy अगर Spirit उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हुई and going to be slowly filled with the Holy और Spirit, पवित्र आत्मा से भर गया, slowly God is going to add to it. तो बाकी बातें उसके जीवन में अपने आप 100%. 100% God is going to add to that तो person. परमेश्वर के जीवन में बाकी बातें जोड़ देगा। Every need of his will be fulfilled. उसकी हर एक जरूरत को पूरी कर दी जाएगी। Whatever his need is, कोई भी किसी तरीके की जरूरत क्यों ना will हो, be fulfilled. इसी पूरी की जाएगी। You cannot love your wife. देखिए हम अपने पति ऐसे प्रेम नहीं कर सकते।
cannot love. I am telling you the truth. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, Unless you receive the Holy Spirit. जब तक कि आप पवित्र आत्मा को आप न पाओ। Is it not God's need and our need to love our people? क्या ये परमेश्वर की और हमारी जरूरत नहीं कि हम लोगों से प्रेम करें? You cannot love. हम प्रेम नहीं कर सकते Unless you receive the Holy Spirit. जब तक कि आप पवित्र आत्मा को न पाओ। It is not possible to love. ये संभव नहीं कि हम प्रेम कर सके, This world is so fallen. क्योंकि ये संसार गिरा हुआ है। Correct way. I am teaching you the correct way, method. मैं सही इसका तरीका बता रहा हूँ प्रेम करने। Go to Acts 10. आइए प्रेरित अध्याय 10 में हम दिखाते हैं, पढ़ते हैं। You tell me what is the use of studying scripture if I don't love my wife? देखिए, अगर मैं अपने पति से प्रेम नहीं करता हूँ तो इस शास्त्रों को पढ़ने का मतलब क्या बनता है? करोड़ों बनेगा इसमें? क्या करोड़ों चाहिए इसमें? What will happen? क्या What will happen if you study scripture? क्या होगा अगर हम वचनों को पढ़ेंगे तो? What is going to happen? क्या होगा? You have to understand. ये हमें समझना जरूरी है। Go Acts 10, 44 पढ़ो। प्रेरितों के अध्याय 10 वचन 44 हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया। वचन के सब सुनने वाले पे उतर आया। Holy Spirit. पवित्र आत्मा। This is first thing that he did when going to heaven. देखिए, ये पहली बात है जो विश्व में स्वर्ग में तब से पहली बात जो की वो ये थी कि पवित्र आत्मा से भेजा हमारे लिए। Yes. Brother, 45 भी पढ़ो brother. आए 45 वचन भी हम पढ़ते हैं। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान मिला गया। To God है। See, Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की बातें हो रही है। Okay. अच्छा 46 भी पढ़ो brother. आए 46 वचन पढ़ते उसके, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। Glory to God. For they heard them speak with tongues and magnify God. एक अन्य जगह से बात है। They answered Peter. इस पर पतरस ने कहा। Okay, let's go forward. Okay. Yeah. Now the purpose of the of this Spirit देखिए, पवित्र आत्मा का जो मकसद था is twofold. Mean two things it will do. वो दो बातें जो करने वाला था। Okay, first it will help you to live holy lives. पहली बात जो था वो आपको पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करने See, I'm वाला। telling you, all things will be added to these youngsters. देखिए, मैं कह रहा हूँ जो वो सारी बातें जोड़ जाएंगे जीवन में। अभी मैं आगे कैसा बताऊं? I don't know how to explain to people. मुझे पता नहीं कि मैं किस तरह आपको उसका बयान करूँ। All things will be added. हर एक बात आपके जीवन में जोड़ दी जाएगी। All your needs will be fulfilled. आपकी हर एक जरूरत पूरी की जाएगी If you go the right way. अगर आप सही से चलो तो। It is a tough way. ये मुश्किल कार्य है, It's a tough way. It मुश्किल will रास्ता help you है, to live holy lives. लेकिन ये आपको एक पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करेगा। One wrong posture you will not see. आप एक गलत पोस्टर भी नहीं One, देखोगे। you will hate any wrong things which are in these magazines, these, that, whatever. You will hate it. अब हर एक बुराई बातों से आप बैर करोगे। You will hate it. I'm telling you the truth. You will hate it. नफरत करोगे आप बुराई बातों से। And you cannot hate it without the Holy Spirit. लेकिन ये संभव नहीं अगर आप पवित्र आत्मा नहीं पाया हो, Because you're a sinful man. क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं And sin has pleasure inside it. और पाप को उसमें आनंद आता है पाप करने में। Lot of pleasure inside sin. You will hate gossip. आपको जो कानाफूसी जिसे हम कहते हैं ना, You will उससे नफरत- shout at your wife if you are talking of anybody, if they talk of anybody at home. अगर पत्नी से और के बारे में बात हो तो आप पत्नी को चिल्लाओगे। You will say, stop it. आप कहोगे बंद कर इस बात को। This is the power of the Holy Spirit. यही तो पवित्र सामर्थ्य है। See, God said He will add to you. प्रभु ने कहा कि आपके जीवन में बाकी बातें But you know how tough it is. ये आप जानते हो कितना कठिन है, Because the pleasure of sin is so tough. क्योंकि जो पाप का आनंद है बड़ा And it is so, you know it. I don't have to tell you. मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं इस बात को कि पाप में कितना One आनंद friend है। will instigate you like this. एक मित्र भी आपको इस तरह ये कर देगा। गिरा देगा, सही बात है, गिरा देगा. See, first is to help you to live, and you are drenched in the Holy Spirit. You are baptized in the Holy Spirit. First, it will help you to live holy lives. अगर आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हो और भर गए हो तो आप पहली बात है जो पाप से नफरत करोगे। Without this, उसके बिना
you will go back into your old sin. फिर अगर वो पवित्र आत्मा पे नहीं पाया या बपतिस्मा नहीं हुआ तो फिर आप में गिरोगे। 101%, take it from me, 101% means 101%. 1% आपने पिछले जीवन में पाप के जीवन में चले जाओगे। You will go back into your old sin. आप पुराने पापों में चले जाओगे। See, this is the first thing. ये पहली बात। The second thing, जो दूसरी बात जो है, which is so important to the ascension ministry, जो स्वर्गारोहण की जो बड़ी महत्वपूर्ण सेवकाई है, go to Galatians 5. गलातियों के अध्याय 5वें अध्याय में जाते हैं पढ़ते हैं। गलातियों के अध्याय 5 22-23 पढ़ोगे। आइए गलातियों अध्याय 5 वचन 22 और 30 हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। This will be produced inside you. ये हमारे जीवन के अंदर इसका प्रकट होगा। Can you produce it? क्या आप अपने आप से उसको Don't ever fool yourself. Don't ever fool yourself. आप अपने आप को मूर्ख न बनाएं। You cannot produce this. आप अपने आप से इसको प्रकट नहीं कर सकते। First of all, I tell you, पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको, you cannot even talk about love. आप प्रेम के बारे में बात ही नहीं कर सकते हो। Challenge you. आपको चुनौती देता हूँ। I challenge you. Chalo, I challenge you. Chalo, I can challenge you. मैं आपको चुनौती देता हूँ इस बात I के have लिए। people in my house here. मेरे खुद के घर में ऐसे है। We're talking. You cannot talk about it. आप इस बारे में बात भी नहीं You कर सकते। forget about loving. आप प्रेम करने की बात के बारे में You छोड़ दो। cannot talk about it. आप इसके बारे में बात भी नहीं कर सकते हो। Unless the Holy Spirit produces it inside you. जब तक कि पवित्र आत्मा के भीतर न आए, आप उसे भर न जाए तो I am telling you the truth. आपको सच्चाई का बता रहा This is हूँ। the greatest thing that a girl wants to hear from a man. This is the greatest thing a girl wants to hear from a man. देखिए ये सबसे बड़ी बात जो एक लड़की अपने इससे चाहती है। प्रेम। He wants to hear these things. वो ये सुनना चाहती है। This is our security, ये तो हमारी सुरक्षा है। not money. पैसा नहीं, धन नहीं। Not money. Again, I'm telling you, not money. मैं फिर एक बार कहता हूँ, धन नहीं, संपत्ति नहीं। This is our security. ये हमारी सुरक्षा है। Where is she getting it from? Our men. जो अपने पति से मिले प्रेम, The words only don't come out from your mouth. कि अपने मुख से बातें नहीं निकलती है, शब्द नहीं निकलता। And you give it all sort of saying my past and my present and my young age and my nonsense and nonsense. You are no Holy Spirit. अगर हमारा पवित्र आत्मा नहीं है तो ये सारी बातें हमारी Cannot be produced inside you. इसके बिना हम ये सारे फलों को उत्पन्न See, नहीं कर सकते। love is given first, then joy. See, Jesus said, my peace I live with you. देखिए यीशु मसीह ने मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Not possible without the Holy Spirit. देखिए ये पवित्र आत्मा के बिना संभव ही नहीं। What my peace I live with you? They wanted position. देखिए किस तरह मेरी शांति में रह सकती है? बहुत- तुम्हें तो एक स्थान चाहिए, स्तर And चाहिए। John, the beloved of Jesus, यूहन्ना जो यीशु मसीह का जो बड़ा his mother is asking for both the sons to get position. लेकिन उसकी माता क्या मांगते अपने दोनों बच्चों के लेके स्तर मांगते, स्थान मांगते उनका Jesus said, स्थान। my peace I live with you. देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Not possible. संभव नहीं है, Because this is the fruit of the Spirit. क्योंकि ये पवित्र आत्मा फल है। This is not the fruit of Jesus when he was on earth. देखिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर तब ये नहीं था, Not possible. This is संभव the नहीं fruit था, of the Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा के फल है। Okay, long suffering, gentleness, goodness, faith. Okay. Okay. Then he gave, when he went up, he gave also gifts to men. देखिए जब वो स्वर्ग में उससे वो दान भी दी है। Okay. This you read in Ephesians 4:8-12. ये आप इफिसियों अध्याय 4:8 में पढ़ सकते These are the gifts. Okay. It is impossible to be saved. ये असंभव है कि हम बच जाए, उद्धार हो। Impossible. Again, I want to tell you the truth. Don't be deceived. आप फंसाए नहीं जाए, मैं आपको सच्चाई बयान कर Please रहा हूँ। don't be deceived. आप फंस न जाए। Impossible to be saved आपका उद्धार होना ये असंभव without था। this baptism. ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बिना आपका उद्धार होना असंभव है। See, please don't. Please, I'm telling you, challenge people who talk through Scripture. मुझे वचनों के द्वारा मुझसे बातें वो चुनौती देता हूँ। Let him be the biggest pastor on earth or anybody, कोई भी or let it be me. मैं अपने आप को भी चुनौती देता हूँ। You challenge those people who said that on such and such a day I was saved. कोई ये कहे कि पर ऐसे इसे उद्धार हुआ, बिना पवित्र आत्मा का उद्धार होना असंभव है। This is not possible. ये असंभव है। Without the baptism of the Holy Spirit. बिना पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के ये संभव नहीं कि तुम्हारा उद्धार हो। Okay, let's go forward. आइए आगे बढ़ते हैं। I'm reading to you. It is no wonder that Jesus, who gave his disciples this huge task, told them that
Don't go anywhere. देखिए जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को जो बड़ा कार्य दिया था उसने क्या कहा आप कहीं न जाए And warn them उन्हें चेतावनी दी not even to try. Not even to try. आप कोशिश भी ना करें Unless the Spirit is given to them. जब तक कि पवित्र आत्मा न मिले आपको They will fail. तो आप असफल हो जाओगे You will fail. You will fail. See, I want to tell you the truth. हम See, सच्चाई बता रहा हूँ every person sitting here na हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है वो ना has some or sort weakness. हमारे पास कहीं कोई ना कोई कमजोरी अवश्य है It is through the Spirit ये तो पवित्र आत्मा ही है who absorbs these weaknesses वो जो कमजोरी को हमारी है वो अपने आप को खींच लेता अपने आप में ले लेता and है lives in love and harmony और वो प्रेम और in together. हाँ, धीरे धीरे रहता है It is only the Holy Spirit. जैसे पवित्र आत्मा है जो हमारे संभव करेगा हम प्रेम से बने रहे You agree ना? Everybody in this room has some sort of weakness. देखिए आप तो ये मानते हो इस बात को हर एक में कोई ना कोई कमजोरी अवश्य है This is the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा है, Work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा कार्य है This is the first. That's why you warn them. इसीलिए उसे चेतावनी दी Don't even try these things आप इसकी कोशिश भी ना करें without the baptism of the बिना Holy पवित्र Spirit. बपतिस्मा के आप कोशिश भी ना करें प्रचार की। Don't try. कोशिश ना करें Not possible. ये संभव नहीं है Okay. This is the first thing that he did. Huh? ये बात उससे पहले बात जो उसने की वो ये की He baptized people with the Holy Spirit. लोगों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया Okay. This he did in heaven, ये उसे स्वर्ग में किया which he went to the Father, took it from him, and then he poured it out on उसे people. वो स्वर्ग में गया पिता से इसे पवित्र आत्मा लिया और अपने लोगों पर उसने उंडेल दी Then can you tell me what is the second thing that he did? आप बता पाओगे कि उसने दूसरी बात क्या की That is, see, first he is a baptizer. Okay. Then the second thing that Jesus did in heaven. पहली बात है उसने बपतिस्मा दी दूसरी बात उसने क्या की What did he do? उसने स्वर्ग में क्या की Come on, अरे बताइए come on, come on. Hare Krishna. God bless you. He is our mediator. वो हमारा मध्यस्थी है Why do I require a mediator if I'm a solid scripture knowing man and nonsense that people talk? ये मध्यस्थता की क्या आवश्यकता है जबकि मैं अच्छे वचन पता है सब कुछ पता है What people are don't even understanding who they are, first of all. पहली बात See what is hurting me. पहली बात तो व्यक्ति नहीं समझ पाते वो है क्या You can, it's not possible. It is not possible. It's a fallen world. अब ये नहीं समझ रहे ये तो संसार गिरा हुआ है पाप में गिरा हुआ संसार है करेक्ट पाप में गिरा हुआ है तुम बच नहीं पाओ यू कैनॉट बी तुम बचेंगे नहीं यू कैन तुम बचेंगे नहीं दैट इज व्हाट द ट्रूथ इज यू कैनॉट बी सेव फ्रॉम इन दिस वर्ल्ड इस संसार में आप पाप से बच नहीं सकते आप बच नहीं सकते आई प्रे दैट इट गोज इनसाइड मैं प्रार्थना करूं कि आपके भीतर ये बात को सच्चे समझ में देन आए यू लुक एट अ मीडिएटर तो फिर आप उस मध्यस्थ को हु इज देखोगे इन हेवन जो स्वर्ग में है फॉर हिज पीपल वो अपने लोगों के लिए स्वर्ग में है फॉर हिज पीपल अपने लोगों के लिए You see who are not come to the Lord, how they speak and how we speak. देखिए जो लोग प्रभु में नहीं है वो लोग किस तरह बातें करते हैं और जो प्रभु में है वो किस तरह बातें करते Husband हैं and wives are here, who have some have come to the Lord, some have not come to the Lord. उनका भाषा ही चेंज हो गया है. देख किस तरह ये ऐसा लो, इसका भाषा ही अंतर चेंज हो गया है. क्या तो जो प्रभु में है और प्रभु में नहीं है इनके बातों में उनके बातचीत के आपको अंतर समझ में आता है mediator, okay. We sinners हम पापी जो है and all of us हम में सभी हम need a priest हम ऐसे याजक की आवश्यकता है to approve us in front of a holy God. ताकि जो पिता परमेश्वर जो हमें जो ग्रहण करे You require a priest. ऐसा याजक की आवश्यकता है जो पिता के पास रहे जो हमें हमारे लिए ग्रहण योग्य कोई प्रार्थना Yeah. करे So you require mediator. ऐसा हमें मदद चाहिए Correct? You require a priest. ऐसे याजक की हमें आवश्यकता है See what the Bible teaches. देखिए क्या शास्त्र में सिखाता The है Jews of the Old Testament, जो यहूदी जो पुराने नियम में they बताया understood this. वे इस बात को जानते थे They understood this. Correct or no? वे जानते थे इस बात को So you know this. They were priests, this, that, all you know. Okay. वे जानते उस समय के लिए याजक तो जो मध्यस्थी करता था यहूदियों के लिए Members of the Orthodox Church, ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो सदस्य Catholic Church, कैथलिक चर्च के सदस्य हैं, High Anglican churches, ये एंग्लिकन चर्च उनके all have understood priesthood वे जानते कि याजक पद क्या होता है and included it in their system. Yes or no? उन्होंने अपने सिस्टम में इस बात को याजक पद को डाला हुआ है But is it what the Bible teaches? देखिए ये शास्त्र हमें सिखाते हैं इस बात को
Is it what the Bible teaches? पर क्या शास्त्र इस बात को सिखाता है? See, I am only wanting people here who are still connected to the denominational churches. देखिए मैं उन लोगों से बातें करूं जो खाली एक जो डिनोमिनेशन होती है, जो संस्थाएं होती है, जो कलीसिया होती है, Not से जुड़े हुए हैं। Not to listen to me, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बात सुनो, but to listen to the word of God and be convicted. और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर वचन को समझे और अपने आप को समझ करें। Only that is what I pray for. और यही मैं प्रार्थना करता हूं कि आप वचनों के द्वारा इस बात को समझ लें। See? Okay. Now let's go further. आइए आगे बढ़ते हैं। All have used, all these people have used, the Jews and the Catholic, Anglican, सारे लोग जो यहूदी है, एंग्लिकन है, या they have used human beings. वे Yes or no? As priests. याजक पद के लिए किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं। Bible believing Christians. Bible believing Christians बाइबल पे विश्वास करते हैं जो लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, have understood जो जान गए that ये the New Testament teaching जो नया करार जो हमें सिखाता है, about priesthood अब जो याजक पद के बारे में बताता है, is for all believers. वो सारे विश्वासी के लिए, All believers. हर एक विश्वासी के लिए। If anybody want to see, हर एक कोई देखना चाहता है, show scripture. तो उन्हें वचन दिखा। Maximum we can show scripture. More than that we cannot do. देखिए वचन हम उनको दिखा सकते, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। That's all. See, again I'm reading. Bible believing Christians, जो बाइबल पर विश्वास करते हैं जो लोग हैं, that is us, जो हम understood ये जान गए the New Testament teaching जो नया करार जो हमें सिखाता है, about the priesthood of all believers. तो सारे विश्वासी लोगों की याजक पद के बारे में। So when I say all believers जब मैं ये कहता हूँ सारे विश्वासी in the priesthood, जो याजक पद के बारे में, I am counting only the male. तो मैं सिर्फ पुरुष को ही उसमें गिनता हूँ। Okay, and is it clear? ये साफ है You will see बात। scripture also. Okay. Each one of these males हर एक पुरुष in every house हर एक घर में can come direct to the throne of grace. जो पूरी जो सीधे अपने अनुग्रह के सिंहासन पे आ सकता है। Yes, glory to God. Now, go to Hebrews 10. आइए इब्रानी अध्याय 10, Go to Hebrews 10. This is all the ascension ministry. तो ये सारी स्वर्गारोहण की सेवकाई है। Hebrew 10, 19, 20 पढ़ोगे? इब्रानी का अध्याय 10 वचन 19 और 20 आइए हम पढ़ते हैं। इसलिए भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का योग हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। To God. This is the priesthood of all male believers. ये सारे जो पुरुष वर्ग है उनके लिए याजक पद की बातें कर रहे हैं। But is it enough? क्या यही काफी है? Is this priesthood enough? क्या यह याजक पद काफी है? Then what? फिर क्या? Maximum I can reach the holy place. मैं सिर्फ पवित्र स्थान में जा सकता हूँ। फिर आगे Maximum I can reach the holy place. ज्यादा से ज्यादा मैं पवित्र स्थान में जा सकता हूँ। पवित्र स्थान Now में। how to go to the holy of holies? फिर पवित्र से पवित्र स्थान में कैसे जाऊँ? Whom do you require? फिर हमें किसकी आवश्यकता है? Now see that. Just give me an answer from the Old Testament. मैं पुराने नियम से इसका उत्तर दूँ। Where could the priest reach? जो याजक जो थे उस समय कहाँ तक वो जा सकते Where थे? could the priest reach? You know, you don't know. The priest couldn't reach the holy of holies, yeah. Yeah, glory to God. See, you're not connecting this. The priest, I'm talking about the priest were doing all this sacrifice, this, that, and all, and then going where? मैं याजक की बात कर रहा हूँ। Where they were going? वे सिर्फ पवित्र स्थान में जा सकते थे, जो बलि करते सारे कार्य करते थे। Yeah, the holy place. That is the second compartment. जो दूसरा भाग था। Second compartment. Are you getting it or no? Yeah. बात तो जानते हो The समझते। second compartment they could go. देखिए दूसरा स्थान है जहाँ पे Nobody can enter the पवित्र स्थान- holy of holies. दूसरा भाग में पवित्र स्थान है, वहाँ वे याजक जा सकते हैं, लेकिन पवित्र से पवित्र स्थान जो है वहाँ पे वे जा नहीं सकते So थे। whom do you require then? फिर हमें वहाँ जाने की किसकी आवश्यकता थी? You require high priest. आपको एक महायाजक की आवश्यकता थी। See, you have to connect it. See how this is harmoniously connected from the old to the new. तो किससे पुराने नियम से नए नियम में जोड़ा जाता है, इस बात को समझिए। You require a high priest आपको महायाजक की आवश्यकता है
to go into the holy of holies. ताकि वो पवित्र से पवित्र स्थान में जा सके। Even though I am a priest. जबकि मैं याजक हूँ, You are understanding or no? आप समझ रहे हो कि Even though I am a priest. जबकि मैं याजक हूँ, Even though I am the head of the house. जबकि मैं घर का मुखिया हूँ, Even though I am struggling to be holy. जबकि मैं पवित्र होने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, I am fighting with this sin. मैं अपने पाप से झगड़ा कर रहा हूँ या I can reach the holy of. I can reach the holy place. तो मैं इसे पवित्र स्थान में जा सकता हूँ। I require high priest. देखिए मुझे महायाजक की आवश्यकता है। Now let us see. See, this has all been knocked out from our system. देखिए हमारे जो सिस्टम से इन बातों को निकाल दिया गया है, उसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता। What knocking this out means what? De-glorifying Jesus Christ. De-glorifying Jesus Christ. क्या वो यीशु मसीह को महिमा देता है ये बातें सारी? And de-glorifying Jesus Christ is, I am going to strongly say, is totally satanic. देखिए मैं आपको बड़ी मजबूती से कहता हूँ, ये सारी शैतानी बातें हैं, क्योंकि ये परमेश्वर महिमा नहीं देती। Only the person who will do de-glorify Jesus Christ is Satan. शैतानी है जो परमेश्वर यीशु मसीह को महिमा नहीं देता। Telling you the truth, how we have systematically removed the book from our hands of our people. देखिए किस तरह हमारे जो लोगों के हाथों से शास्त्रों को निकाल दिया गया है। Why there are no educated people in our group, in our communities? क्या हमारे इसमें कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है? They are systematically removing this means what? देखिए एक सिस्टमेटिक इस बात को निकाल देने का मतलब क्या होता है? Is to de-glorify Jesus, मतलब यीशु मसीह को महिमा नहीं देना, which is totally satanic. जो पूरी तरह शैतानी है। Go to Hebrews 9:12. इब्रानी का अध्याय 9 वचन 12 पढ़ना। Yes. आए इब्रानी अध्याय 9 वचन 12 हम पढ़ेंगे। और You have to understand the opposition we have. हमें ये समझ कि हमारे विरोध में कौन है। God, you cannot even imagine. आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हो। Cannot imagine. आप कल्पना तक नहीं कर सकते हो। Opposition we have by our close and dear ones. कैसे हमारे जो विरोध है, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। Cannot imagine. आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हो। Hebrews 9:12. आइए इब्रानी का अध्याय 9 वचन 12 में पढ़ते हैं। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। Glory to God. This is our high priest, huh? ये हमारा महायाजक है। Okay. Now 10:21. आइए अध्याय 10 वचन 22 पढ़ते हैं। 21 देखिए इब्रानी का अध्याय 10 इब्रानी में हाँ. इब्रानी 10 वचन 21। पढ़ो. और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। Glory to God. बल्कि महिमा हो, This is my high priest. ये मेरा महायाजक है। I'm telling you the truth. The essential ministry is so important. देखिए ये स्वर्गारोहण की जो सेवक है बड़ी That महत्वपूर्ण is है। why our people are not looking up to heaven. लेकिन यही कारण है कि हमारे लोग स्वर्ग की ओर नहीं ध्यान दे रहे And हैं they are so earthly और वो कितने और सांसारिक है। because we removed this thing what Jesus is doing for us. जो यीशु मसीह का कार्य है, उस बात को हमने निकाल दिया, उसको भूल गए। How we portray him as living हम किस तरह उसको समझ रहे हैं इस बात को। when we are fighting and succeeding in overcoming sin. जबकि हम संघर्ष कर रहे हैं, विजय पा रहे हैं जब पाप के ऊपर। Yes. Let's go further. आगे बढ़ते हैं। His divinity, God man, qualifies this person to be our high priest. देखिए वो मनुष्य प्रभु उसकी जो दिव्यता है Qualified. वही हमारा जो महायाजक है। Okay. Now go to Hebrews 2:18. ये इब्रानी का अध्याय 2 वचन 18 हम पढ़ते हैं। इब्रानी का अध्याय 2 वचन 18। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। Glory to God. He is the right person. Why I am telling you he is the right person? मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो एक सही व्यक्ति है। For in that he himself suffered being tempted. देखिए किस दुख में खुद भी इसमें उठाया उसने। He knows everything about the problems of Derek. ठीक है वो हमारे हर एक समस्या को जानता है, Everything he knows. हर एक बात को जानता है। And he fights our case, which I will show you in depth about the fighting of the case. वो हमारे बारे में As an advocate. Okay. Okay. Now let us, because you see, for in that he himself, पढ़ो हिंदी में पढ़ो क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। Glory to God. See, temptation is not sin.
देखिए आपकी परीक्षा होना कोई पाप नहीं है। Temptation is not sin. Again, I'm repeating. फिर दोहराता हूँ कि परीक्षा होना पाप नहीं है। Giving into that temptation अपने परीक्षा में आपको अपना मतलब is sin. परीक्षा में मतलब अपने छोड़ देना, त्याग करना या इसमें गिर जाना, ये पाप है, That is sin. ये पाप है। You will be tempted 1,000 times a day. आपके 1000 बार आपकी परीक्षाएं होगी, But giving into that temptation, परीक्षा में गिर जाना मतलब परीक्षा में हम असफल होना। turn these stones into bread. जैसे कि शैतान ने कहा No, कि इस रोटी को इस पत्थर को रोटी बना, Could he not have done it? क्या यीशु मसीह इसको नहीं कर सकता था? Yes. कर He सकता was tempted also, था। उसकी भी परीक्षा हुई, but he did not give in. लेकिन उसने इसी तरह नहीं त्याग किया। And to fight this is the baptism of the Holy Spirit. तो उससे युद्ध करना है तो हमें पहुंचाता बपतिस्मे की आवश्यकता It है। takes you here. वो आपको वचनों में ले जाएगा। Glory to God. Okay, Hebrews 4, 14, 16. आइए इब्रानियों के 4 वचन 14 और 16 14. Hebrews 4, 14, 15, 16. इब्रानियों के 4 वचन 14, 15, 16 आइए हम पढ़ते। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अहंकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, पर वह सब बातों में हमारे समान प्रगट हो गया तो अभी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट घेराव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। Glory to God. इसलिए मैं बता रहा हूँ हम लोग कितना पापी है। See, seeing then we have a great high priest that is passed through the heavens. Jesus, the Son of God. Let us hold fast to our profession, for we have not an high priest which cannot be. That's why all this priesthood is gone, finished, देखिए इसीलिए सारा महायाजक पद गया है। gone. See, if you for we have not an high priest which cannot be touched with the feelings of our infirmities. But can these people solve us? Can these people who are priests today help us to get out of the power of sin? क्या आज के जो याजक है और खुद पावर में, they themselves are in power of this sin. क्या आज के जो याजक जो बने हुए हैं लोग जो क्या वो हमारे पाप में से हम छुड़ा सकते हैं या बचा सकते हैं? लेकिन वो देखा जाए तो वे खुद उन पापों में से संघर्ष कर रहे हैं। Yeah, this is to de-glorify Jesus. ये जो है हमारे यीशु मसीह को महिमा नहीं देती। For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. But feelings means he knows how we are living in this fallen world. But was in all points tempted like us. All points. देखिए हर हमारे तरह ही परखा गया। He was tempted like us. यीशु मसीह को हमारे तरह So when Derek is tempted, he knows. अगर मैं मुझे परखा जाता तो I will show you the fighting of this case. I will show you the fighting of the case. अब बताओ किस तरह लड़ा जाता है। How? Because advocate means it's a lawful word, correct or no? What is the meaning of advocate? Advocate means lawyer. वकील का मतलब आप जानते हो कि क्या होता है? And when lawyer means he is fighting directly with law because he is a just God also, no? Yes or no? You cannot just simply say, अरे ठीक है यार डेरिक का ठीक है, no problem, उसने यीशु बोला, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, no, he is a just God which we will show you, no problem. हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो हमारे लिए योग्य रीति से लड़ता है। Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Please. You have to come boldly to the throne of grace for your family, for your wife, for your children. Come to the that we may obtain mercy and find grace to help us in the time of need. देखिए इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। We know that he prayed for us, correct or no? उसने हमारे लिए प्रार्थना की। Prayed for not everybody. हर एक के लिए नहीं। Prayed for repentant sinners. जो पश्चाताप करते उन पापियों के लिए। He prayed for us. हमारे लिए। You know the scripture. I'll give you the scripture. Luke 22:32. Luke 22:32. You take down. Read. आप इसे आगे। Hebrews 7:25. Romans 8:34. Romans 8:34. Okay. Now go to this importance. 1 Timothy 2:5. आइए पहला तिमोथी 2:5 पहला तिमोथी
Does Satan know that this God is a just God? क्या शैतान नहीं जानता कि ये हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है? And he accuses us. और उसके बावजूद हमें पे दोष लगाता है। And he's our advocate. और यीशु मसीह हमारा वकील है। He's our lawyer. वो हमारा For repentant sinners. 1 Timothy 2:5. आए पहला तिमोथी अध्याय 2:5। पढ़ो brother. क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीच वही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मनुष्य है. He is God man. परमेश्वर मनुष्य है। Now he uses his man part, the glorified man part, as our advocate and lawyer, which we will show you, no problem, by God's grace. Okay. Now he is our mediator. ये हमारा मध्यस्थ And है। वापस पढ़ो brother इसको. आए फिर एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। एक ही है. Only one. Only one mediator. Only one mediator. See, if you don't stand for these things in your houses, na, God forbid. God forbid. I'm telling you the truth. Who has an unbelieving husband, who has an unbelieving wife, who has an unbelieving, if both are believing, great. Great. But if you have an unbelieving husband, unbelieving wife, you have to stand for this verse. देखिए आप दोनों विश्वासी है, पति पत्नी तो ठीक है, लेकिन दोनों में से एक कोई अगर विश्वासी नहीं है, अगर आप वचन पे खड़े नहीं है, तो God for God क्या forbid. होगा? परमेश्वर आपको All your songs being gone in vain. तो आपकी सारी प्रार्थनाएं, ये स्तुति, आराधना सारे व्यर्थ है। तो पढ़ो brother वापस. फिर एक बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीच वही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। Glory to God. For there is one God, वहाँ पे एक ही Father, Son and Holy Spirit, पिता and one mediator between God and man, परमेश्वर मनुष्य के एक ही बीच में the man Jesus Christ. मनुष्य जो यीशु मसीह है। Okay. To ask any other people to mediate for me, किसी और को पूछो कि मेरे बारे में मदद करे, any saint, किसी संत को भी, or even Mary itself, अरे मरियम को भी, is to intervene on our behalf, तो हमारे बारे में मदद करे, is to question ये एक प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। the willingness जो की इच्छा and the ability of our high priest. जो याजक की काबिलियत पे प्रश्न उठाता है। It is an insult to him. ये यीशु मसीह के लिए अपमान है, It is an insult to the cross. ये क्रूस का अपमान है, It is an insult to the resurrection. ये पुनरुत्थान का अपमान है, And it is an insult to the ascension. ये स्वर्गारोहण का अपमान है। And to insult God's high priest ये परमेश्वर के महायाजक का अपमान है। is a serious offense. ये एक I गंभीर will show you the scripture and we'll close. Exodus 22:28. आइए पुराने नियम में जाते हैं, निर्गमन के अध्याय में। Serious offense, serious offense. एक गंभीर आरोप है। Exodus 22:28. हाँ, He is high priest. 22 28. निर्गमन अध्याय 22-28 पुराना नियम। निर्गमन 22-28। हाँ 22-28. पढ़ो पढ़ो. Exodus 22:28. हाँ ये हाँ हाँ. आइए पढ़ते हैं 28 वचन। परमेश्वर को श्राप नहीं देना और न अपने लोगों के प्रजा को श्राप देना। Glory to God. The ruler of the, I'll read in English. Thou shalt not reveal the gods, nor curse the ruler of thy people. The ruler of thy people. And we will see what is the meaning of ruler of thy people. हम समझेंगे अपने लोगों का प्रजा का मतलब क्या होता है। Go to Acts 23:25. Acts 23, 2-5. आइए प्रेरितों के अध्याय 30 वचन 25 की ओर पढ़ते हैं। Acts 23, huh? 2-5 पढ़ो। हाँ करेक्ट 23:2. अच्छा 2। हाँ अच्छा प्रेरितों के अध्याय 23 वचन 2। और एक से पढ़ो ब्रदर। आइए एक से पढ़ते हैं। प्रेरितों के अध्याय 23 वचन 1 और 2 हम पढ़ेंगे। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा,
ए भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। इस पर हन्ना याजक ने उसको जिसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। So 3. तब पौलुस ने उससे कहा, एक चुना फिर भी परमेश्वर तुझे मारेगा, तो व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? 4. आगे जो पास करते उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महाराज को बुरा भला कहता है? See what scripture I am showing you. You just see. And 5 भी पढ़ो brother. अरे पाठों बच्चे पर पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं ही नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कर। Paul. ये पौलुस की बातें कह रहा है। He slapped Paul. ये उसने पौलुस को थप्पड़ मारा। You see, he slapped Paul and Paul repented. अब पौल ने फिर पश्चाताप किया। but पौलुस को God. थप्पड़ मारा, उसके बाद पौलुस Paul repented because you think that was a good high priest, Ananias? लेकिन अन्य कोई पूरा अच्छा महायाजक था, But he was high priest. लेकिन वो महायाजक था। And what about Jesus? तो यीशु मसीह के बारे में क्या? What about Jesus? फिर यीशु बारे It's an insult to him. ये इसका अपमान है, It's an insult to him. उसका अपमान है। And you will be judged properly. इसके बाद ये आपका पूरी तरह न्याय होगा, You will be judged by this God. और ये परमेश्वर आपका न्याय करेगा। Especially you say you Jesus. उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि यीशु। Yeah, okay, so we'll close today. Next time, no, what we'll speak is that I have to go further by God's grace. You cannot insult God's high priest. It's an insult. ये मैं आपके परमेश्वर अनुग्रह See, से आगे- that is the reason we left it. You don't think in our family people are not objecting. Arey, you are mistaken. देखिए यही कारण है कि हम यीशु मसीह में आए, यही कारण But है we will fight them even if they leave us. We will fight them even if they leave us. That we will. और उन्हें हमें छोड़ भी है तब भी हम उसके लिए There is no संघर्ष करेंगे। question now. कोई प्रश्न उठता नहीं, हम प्रभु में बने रहेंगे। Not possible. संभव नहीं। Now it is not. That's why I encourage people who have an unbelieving husband, unbelieving wife. You have to fight. मैं जो उन्हें उत्साहित करो जो इसके पति या पत्नी जिनका उद्धार नहीं So many हुआ, years we have been taught, this is taught, that is taught. That is not possible now. ये संभव नहीं है When we came to know the truth. जबकि Okay. हम सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। Okay. Now next time I will teach you. अगली बार मैं आपको पढ़ाऊंगा Okay. What is the meaning of advocate? Okay. Okay, वकील का मतलब The होता है। lawyer Jesus. जो यीशु मसीह जो वकील है Okay. उसके बारे में आपको What? पढ़ाऊंगा। Suppose for example Derek sins. जबकि Okay. उदाहरण के मैंने पाप किया है, And I am believing in Jesus. I have accepted Jesus Christ as my Lord and God. Say. देखिए मैंने पाप किया And है, और मैं वो व्यक्ति हूँ जो- something happened. I slip. मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिससे मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह पर, और मैंने पाप भी किया है। Okay, I slip. और Then मैं- Satan will accuse me, na? तो क्या शैतान मुझ पर Because I दोष am the accuser of the brother. Yes or no? कि वो शैतान हुआ है जो अपने भाइयों पर दोष लगाता है, And he is a just God. और परमेश्वर नहीं है। Now what? अब क्या? You don't know your privilege in Jesus Christ. आप ये नहीं जानते यीशु मसीह में आपका क्या सौभाग्य है। That is the problem. ये समस्या That है, is the problem. ये समस्या है। You don't know the privilege in Christ. आप ये नहीं जानते कि आपका कितना सौभाग्य You यीशु मसीह don't know में the सौभाग्य meaning है। of advocate. अब ये भी नहीं जानते कि वकील का That मतलब is क्या why है। the ascension ministry is important. और इसीलिए स्वर्गारोहण यीशु के स्वर्गारोहण Okay, हुआ- we will do हुआ- that next time. Okay, next time. By God's grace. Okay. Then we will show. Then also we will show you. He is our pioneer. Pioneer बोलो our leader. हाँ, वो हमारा अगुवा भी है। What he does. Okay. देखिए वो क्या किया उसने। Okay. Then lastly, आखिर में हम he is ruler. वो हमारा He is ruler. He is our शासक। Okay. शासक। I'll close. Now I'll leave you with some homework. आप कुछ आप घर पे कार्य You have करें, to find out आपने ढूंढना है in the Old Testament पुराने नियम में there is one verse वहाँ पे एक वचन है given to Jesus यीशु मसीह के बारे में that he is ruler. कि वो शासक है, Okay. And that same verse और वही वचन is repeated उसको दोहराया गया है 20 times in the New Testament. नए करार में 20 बार दोहराया गया है। One verse ये वो एक वचन that he is ruler. कि वो एक शासक है, There should be no mistake. वहाँ पे कोई गलती नहीं हुई है। Which is in the Old Testament, one पुराने verse. में एक वचन है, Shall I tell you in the Psalms? मैं आपको बताऊंगा भजन संहिता में लिखा हुआ है That is repeated 20 times जो 20 बार नए करार में दोहराया in गया the है। New Testament. In the New Testament. Okay, we'll close. Father God, पिता परमेश्वर, I come before you, my Lord, एक प्रभु मैं आपके सम्मुख आता हूँ for our youngsters, Lord, मेरे जवानों के लिए पिता, that they look up, Lord. ताकि वो आपकी ओर देखे, They look up to a living God, Lord. अपने जीवित परमेश्वर को देखे। I pray for all of us gathered here तो जो हम सभी के उनके सभी के लिए प्रार्थना करता that हूँ we will not look up to
to the past, फिर हम भूतकाल को न देखें, but we look at the present. पर हम वर्तमान में देखें What Jesus is doing for us. कि यीशु मसीह हमारे क्या कार्य कर रहा है। Lord, I pray, Lord, ये पिता मैं प्रार्थना करता हूँ that the prayer life of the youngsters कि जवान की जो प्रार्थना का जीवन जो है will change, Lord, जो बदल जाए, looking up to a living God. जो अपने जीव परमेश्वर की ओर देखे, They will jump, Lord, वे कूदे when they have said no to sin, जब वो पाप को ना कहे, when they get all opposition जबकि उनके सारे विरोधी खड़े हो in जाए, their colleges उनके कॉलेज में, and in their houses उनके घर में, regarding sin, जब पाप के बारे में जब and they have a power to say no. और उनके पास ऐसा सामर्थ्य कि वो ना गए पाप के लिए। Lord, I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ that they will go down on their knees in secret, वे अपने घुटनों पे जाए, thanking our high priest अपने महायाजक को धन्यवाद दे for removing this word no कि वो ना जो है उनके मुंह में रहे, from our mouths regarding sin. पाप के लिए ना उनके हमारे मन में रहे। Lord, I pray for the widows of this church, और Lord, मैं इस कलीसिया की विधवाओं के लिए and प्रार्थना the करता widows of all Mumbai churches, my God, हूँ। मुंबई के सारे कलीसिया के विधवाओं के लिए प्रार्थना करता that हूँ they will be supported, ताकि उनको सहायता मिले, well supported by their children. उनके बच्चों के द्वारा उनको अच्छी तरह They सहायता will be मिले, loved by their वो children. अपने बच्चों के द्वारा अच्छे से प्रेम पाए। Lord, प्रभु widows are too much important for you, Lord. प्रभु आपके लिए विधवाओं का बड़ा महत्व है। Lord, I pray for the orphans, Lord. प्रभु मैं अनाथों के लिए प्रार्थना करता हूँ। They are also too much important for you, my God. प्रभु आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। Lord, प्रभु baptize our people with the Holy Spirit, my तो God. हमारे लोगों को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दो So they will learn only one thing, my God, ताकि वो एक बात को सीख जाए, to love our people, तो अपने लोगों को प्रेम to करें, love our people at home, Lord, घर पे अपने लोगों को प्रेम करें, to love them, Lord, तो वो प्रेम कर to सके, love our aging people, my अपने God, बूढ़े बुढ़ाओं को प्रेम करे, to embrace them, my God, उनको आलिंगन दे, to bring things for them, my God, उनके लिए कुछ सामान लाए, कुछ गिफ्ट लाए, and love them, my और उनसे God. प्रेम करे। I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता in हूँ the name of our Lord and Savior, हमारे प्रभु और उद्धारक के नाम, Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में।